Hello, hello and welcome to this video. This is a demo video for business communication for CSEET. My name is Pranjali Kapoor, and before teaching, I would like to introduce myself, uh, and I would also like to tell about this syllabus. CSEET was earlier known as CS Foundation. Now it is known as CS Executive Entrance Test. And now I would like to tell about myself. So, my name is Pranjali and I'm 26 years old. Uh, I am doing CS. I am in CS finals right now and I have completed third group of CS professional. I have also done BCom and MCom and I'm from Kanpur and I am pursuing law right now. I'm also in my fourth semester of LLB. I have experience of 5 years of teaching commerce and economics from classes ninth to 12th at a coaching center. So this is about me. And now the next question is that why should we choose an academy as a field or as a platform for education? So, we should choose Unacademy. Why? Because Unacademy is a diverse platform, it's a versatile platform. It offers a lot of preparation. चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर प्रोफेशनल एग्जाम्स हो लाइक CA CS, Unacademy offers everything. And I am choosing Unacademy for a faculty as a faculty because I have a knack for teaching. I have a passion for teaching, and an academy will give me a chance to make students learn and gain knowledge, and will also help them to understand various concepts. So, an academy is the best platform for anyone and everyone who wants to learn at a remote place at their homes without facing the trouble of going to the classes and trying to learn there, because online classes are have become a huge like they have a huge access, and uh, students from all parts and everywhere, like they can join an academy for their learning. Okay, so this was all about the introduction and why should we choose an academy. Further, I would now like to introduce the whole syllabus. So the thing is that CSEET has four subjects, okay, and business communication is one subject out of these four. It is of 50 marks, first of all. Business communication is paper one. Paper one has 4 units, okay. Unit 1, Unit 2, Unit 3, and Unit 4. तो यूनिट वन में क्या क्या है? यूनिट वन हैज एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश. सो दिस इज समथिंग जो हम लोग बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं फ्रॉम क्लासेस नाइन्थ टू ट्वेल्थ और मे बी बिफोर दैट. येस, बिफोर दैट, बिकॉज देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो क्लास वन से स्टार्ट होती है. क्लास वन से लेके क्लास 12th tak we study English language, and good English has these. And why are they teaching all this in a business communication paper? कोई language का paper नहीं है ये. This is a business communication paper, but they are teaching it because this is very important when you write a letter, for example an email or letter, or when you're communicating in a business. So good English has essentials of good English has adjectives, adverbs, synonyms, antonyms, homophones, idioms, proverbs, जो हम लोग इस 2 महीने के टेन्योर में जो 4 यूनिट्स हैं उसमें से कवर करते रहेंगे. This whole syllabus will be covered in 100 hours with 50 classes, and yes, over a period of 50 days. Now, after this, the second unit is communication, and this is something that I would like to start with today. Communication is very, very, very important, and yes, a lot of things are here to ask. Unit 1 is also important, but not as important as communication. Okay, so communication has principles: written, oral means of communication, vertical, circuit, chain, wheel,
ठीक है। ईमेल, एसएमएस, वॉइस मेल, बहुत सारी चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होते हैं, वी विल लर्न स्लोली एंड ग्रेजुअली। Then comes business correspondence, which is unit number 3. यूनिट नंबर 3 में बिजनेस लेटर क्या होता है, वेब, इंटरनेट, ई करेस्पॉन्डेंस, मतलब बेसिकली बिजनेस में बात करने के लिए हम लोग कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो ऑफिस नोटिस हो, सर्कुलर्स हो, हम कैसे ईमेल लिखते हैं, ईमेल कैसे होता है। Why are they teaching you at this level? Why is ICSI introducing all this? Because they want कि आगे चलकर when we will become professionals, when we will become company secretaries, so we should know how to write, how to communicate. And this is, believe me, trust me, this is very 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 important. It's very important to understand कि कैसे communicate किया जाता है, whether it is any form, it's a business or it's a job, anywhere communication is necessary. Now last unit that we have is common business terminologies. So we have some jargons are जो words use होते हैं business में, तो common business terminologies भी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या यूज होता है, लॉज क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है। आई होप दैट वी आर वेरी मच क्लियर विद द सिलेबस। सो आई वुड लाइक टू रिपीट माई सेल्फ कि paper 1 business communication, okay, paper 1 50 marks, and business communication has 4 units: unit 1, unit 2, unit 3 and unit 4. Okay, unit 1 is about essentials of good English, 2 is about communication, 3 is about correspondence and 4 is about common business terminologies. Okay, now proceeding ahead, the next slide that we have is concept of communication. So, concept of communication. What is concept of communication? Okay, now we are going to actually start the whole thing. Concept of communication is basically we have to understand कि before starting concept of communication we have to understand कि communication as a word क्या होता है। सो कम्युनिकेशन जो है ये कहाँ से आया है, इट हैज कम फ्रॉम अ वर्ड, लैटिन वर्ड विच इज कॉल्ड एज कम्युनिस। अब CS एग्जाम्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात है फाउंडेशन में, बाइबल इज योर मॉड्यूल, जो आपको मॉड्यूल प्रिस्क्राइब होती है, दैट इज योर बाइबल। यू हैव टू स्टिक टू द मॉड्यूल बिकॉज एवरी क्वेश्चन विच इज आस्क्ड, बिकॉज इट्स अ ऑब्जेक्टिव पेपर, राइट, CSEET, तो दे विल आस्क यू फ्रॉम हियर ओनली। जो भी वर्ड्स, जो भी चीजें वो पूछेंगे वो इसी बुक से पूछेंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन वर्ड कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से। ओके, लैटिन वर्ड जिसका नाम है कम्युनिस, और कम्युनिस का मतलब होता है शेयर करना। ओके, सो कम्युनिकेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इज नथिंग बट अ प्रोसेस। और कम्युनिकेशन प्रोसेस है किस चीज का, एक्सचेंज का। एक्सचेंज ऑफ व्हाट, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस और फीलिंग्स। ओके, क्या ये कम्युनिकेशन सिर्फ हम वर्ड से कर सकते हैं? नहीं, वी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रू सिम्बल्स, साइन, बिहेवियर। हमारा कैसा, हम कैसे बात करते हैं इज नॉट द ओनली वे टू कम्युनिकेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्लास में बैठे हैं और टीचर आके हमें डांट दे, और वो लिटरली ना डांटे, वो सिर्फ आंखें दिखा दे, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, दैट वी हैव टू स्टे क्वाइट। ओके, कम्युनिकेशन के बहुत सारे डेफिनेशंस यहाँ दिए हुए हैं, एंड आई हैव हाईलाइटेड ईच एंड एवरी डेफिनेशन बिकॉज इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ how are they so what the thing is that how are they going to ask you these? तो या तो वो क्या करेंगे, कम्युनिकेशन का डेफिनेशन का ऑथर दे देंगे कि किसने लिखी है, और फिर डेफिनेशन पूछ लेंगे, ठीक है, ये हडसन ने कौन सी लिखी है। या फिर वो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन उठा के देंगे और वो पूछेंगे कि ये बताओ कि किसकी डेफिनेशन है। सो वन बाय वन वी विल टेक द डेफिनेशन। हडसन की है, कून्स एंड ओडोनल की है, जॉर्ज टेरी की है एंड एलन न्यूएस की है। कम्युनिकेशन इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इसको कहा है हडसन ने। So I'm not going to go into the definitions basically because it is something that you have to remember. Now how will you remember? I'm just going to tell you a trick जिससे याद हो जाए। You have to stick to 3 words. 3-4 वर्ड्स पकड़ने हैं हमें, एंड हमें पता चल जाएगा कि यू नो
ये क्या है, मतलब कौन सी डेफिनेशन है। जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर ये तीन चार पांच वर्ड आ रहे हैं तो ये किसकी डेफिनेशन है, हडसन की। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज, अगर एक्सचेंज वर्ड आ रहा है तो ये किसकी डेफिनेशन है, जॉर्ज टेरी की। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू लर्न, ठीक है। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, बिकॉज दिस विल कम इन एग्जाम नाउ। सो कम्युनिकेशन, आई होप एवरी वन इज क्लियर ऑन कम्युनिकेशन, कि ये एक एक्सचेंज है आइडियाज का, फैक्ट्स का, ओपिनियंस का, फीलिंग्स का। लेकिन क्या ये सिर्फ वर्ड से होता है, जी नहीं, ये सिंबल से भी हो सकता है, बिहेवियर से भी हो सकता है, और साइन से भी हो सकता है। आजकल हम लोग बहुत सारी चीजें यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेटिंग, टेलीफोन, मोबाइल, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन। नाउ, अब हमने कम्युनिकेशन का पूरा पढ़ लिया, बट हमारा सब्जेक्ट क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन इन इट सेल्फ इज व्हाट, कि जो कम्युनिकेशन हम बिजनेस में करते हैं, हम परचेज, सेल, मार्केटिंग, सप्लाई, वॉट एवर दैट वी डू इज ऑल बिजनेस कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे लिखा है ऐसा कम्युनिकेशन जो किसी कमर्शियल एक्टिविटी में काम आए। ओके, हम परचेज कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, हम मार्केटिंग कर रहे हैं, हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, अगर इन सब चीजों में कुछ काम आए तो दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस कम्युनिकेशन। Okay, business communication is also common for companies to insist upon excellent communication skill. And as I told you, communication skill is very, very, very important. Now, communication हो गया, exchange of ideas and facts, opinions. दूसरा business communication हो गया, तीसरा communication की definition हो गई। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, कमर्शियल एक्टिविटीज को प्रोवाइड करने के लिए जो कम्युनिकेशन हम करते हैं वो बिजनेस कम्युनिकेशन होता है। नाउ, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है, आई एम गोइंग टू टीच यू द फीचर्स एंड देन वी विल वाइंड अप विद दिस वीडियो। सो फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे पहले इट इज एसेंशियली अ टू वे प्रोसेस, राइट। टू वे प्रोसेस है, क्या अकेले हो जाता है, नहीं। क्या हम अकेले खुद से कम्युनिकेट कर सकते हैं, नहीं। वी नीड टू पीपल, ओके, वन इज सेंडर, द अदर इज रिसीवर। ओके, एक सेंडर है, एक रिसीवर है। और कैसे होगा कम्युनिकेशन, सेंडर जो है वो अपना मैसेज भेजेगा, रिसीवर उसे रिसीव करेगा, और रिसीव करके वो उसका फीडबैक देगा, और फीडबैक से कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। ओके, दिस इज व्हाट कम्युनिकेशन इज। पॉइंट नंबर टू, कम्युनिकेशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ऐसा नहीं होता कि आज हमने कम्युनिकेट किया, कल हम नहीं करेंगे, नो, दैट कैन नॉट हैपन एट ऑल, राइट। ऑन गोइंग प्रोसेस है, क्योंकि वी हैव टू डेली कम्युनिकेट, ठीक है। रोज कम्युनिकेट करेंगे, रोज बात करेंगे, कहाँ बात करेंगे, घर में नहीं, वी हैव टू टॉक इन अ बिजनेस एनवायरमेंट, ठीक है, टू मेक थिंग्स वर्क। तो मैनेजर अपने टीम को बताता रहेगा, टीम आपस में कम्युनिकेट करेगी, वो वापस मैनेजर को फीडबैक देगा, एंड दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। सो प्रोफेशनल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन आर ऑलवेज लुकिंग फॉर मैनेजर्स हु कैन कम्युनिकेट, ठीक है, मैनेजर्स जो बात बता पाए, क्योंकि अपनी टीम से काम कराने के लिए क्या चाहिए, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ फैक्ट्स बट आइडियाज एंड इमोशंस। ओके, इट इज नॉट फैक्ट्स कि हमने बस इंफॉर्मेशन दी थी, हमने बस बता दिया, नहीं, आइडियाज भी हैं, इमोशंस भी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई बात बोली दैट इज कम्युनिकेशन, नहीं, हम किस इंटेंशन के साथ बोल रहे हैं, हम कैसे उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब इफ यू आर हैप्पी, इफ यू आर सैड, इफ यू आर टेंस्ड, ठीक है, इफ यू आर एंशियस, ये सारे इमोशंस भी जुड़े होते हैं कम्युनिकेशन। जैसे यहाँ पे लिखा है कि विक्ट्री साइन, इफ यू शो दिस साइन, विक्ट्री, with this is what, that we are happy that we have like we have won something। okay, so victory sign means कि, या फिर this sign means to stay quiet, right, या this sign thumbs up, that this is what, all the best, ठीक है। तो सिर्फ हम मुंह से नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ साइन और सिंबल यूज कर रहे हैं, उससे भी पता चल रहा है कि क्या बात हो रही है। ओके, देन इट कम्स डायनामिक। डायनामिक का मतलब जो चेंज होता रहे, स्टैटिक का उल्टा, स्टैटिक इज जो एक जगह रहे, डायनामिक का मतलब जो चेंज होता रहे, होता रहे, होता रहे। ओके, सो डायनामिक प्रोसेस है कम्युनिकेशन, बार 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 बार
चेंज होता रहता है। हर समय हम एक तरीके की बात नहीं करेंगे ना, कभी कुछ बात करेंगे, कभी कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन चेंज होता रहता है, टीम के बीच में कम्युनिकेशन चेंज होता रहता है। कभी जो है हमें किसी और टॉपिक पे बात करनी होती है, ठीक है, देखो लिखा ना, चेंजिंग शेप ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, ओके। अब ऑफिस में अगर किसी दिन पार्टी है, ऑफिस पार्टी, तो कम्युनिकेशन विल बी डिफरेंट। ऑफिस में अगर काम हो रहा है, कम्युनिकेशन विल बी डिफरेंट। सो चेंज होता रहता है कम्युनिकेशन। देन कम्स गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि हम फालतू का कम्युनिकेशन नहीं करते, हम एक गोल के साथ कि हमें क्या अचीव करना है, हम उसके लिए कम्युनिकेशन करते हैं। और कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव जब वो एक गोल को अचीव करने के लिए हो। बिजनेस में तो स्पेशली, हमें बिजनेस में अपना सेल टारगेट पहुंचाना है 4 करोड़, तो हम उस 4 करोड़ के गोल को पाने के लिए एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। सेल्स टीम इज कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर टू grab that goal. So it is a goal oriented process. And last is that it is an interdisciplinary science. Interdisciplinary मतलब क्या, मतलब बहुत सारी साइंसेस से बन के आया है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, तभी ये एक तरीके की साइंस है कम्युनिकेशन, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बॉडी लैंग्वेज, देन इट इज पॉलिटिकल साइंस, देन इट इज साइकोलॉजी। तो ये सारी चीजें, साइकोलॉजी मतलब माइंड, माइंड का स्टडी, तो माइंड है, बॉडी है, सोशल साइंस है, हम कैसे बात करते हैं, ये सारे साइंसेस मिक्स होके कम्युनिकेशन बनते हैं। So that is it for this video. Before ending this, I would like to repeat again. Features of communication are 6 points. कम्युनिकेशन दो वे प्रोसेस है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता रहता है, चलता रहता है, आइडियाज और इमोशंस के साथ होता है, ठीक है, डायनामिक है, चेंज होता रहता है, गोल ओरिएंटेड है और इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। थैंक यू।